Assalamu alaikum. Dear students, today's lecture will be about WH transformation. You know very well that we have started a series of syntax, and the topic in the syntax is transformation. And there are different kinds of transformation like word order transformation, negative transformation, passive transformation, and one kind of transformation is called WH transformation. And this is also included in the syllabus of those students who are doing BS in English, and they are in the fourth semester from the affiliated colleges of Punjab University. So let's start WH transformation. This is a bit trickier topic, and I have to spend a lot of time in order to prepare this, and I hope that this lecture will prove very beneficial for you from the examination point of view and for the general understanding of linguistics. So first of all, as I have already done in my previous lectures, we have to start from the introduction or the definition of WH transformation, because once you grasp the definition you will be able to understand it very clearly. So you see, I have written grammar according to Noam Chomsky's both transformational and generative. You have already studied that when we talked about transformational generative grammar, Noam Chomsky is of the opinion that transformational generative grammar has two parts. One is the transformational, and the other part is called generative. Transformational, this is an adjective, and generative is also an adjective, and you know this thing very well that there are two kinds of structures. One is the deep structure, and other is the surface structure. So in easy words, in simple words, you can define a transformation. Transformation mean that the change from the deep structure to the surface structure. This is called transformation. So you see that we can be able to transform a deep structure or a basic sentence into several other sentences. For example, there is a sentence that you have I will read a book. For example, this is a deep structure, and you can say I will not read a book. It means that here you have transformed this sentence, assertive sentence, as a positive affirmative sentence into the negative sentence. And you can say that here what you have done is that you have actually uh, added the adverb not in the verb phrase of he will not read a book. Then you say will he read a book. You can also say what will he read. You can say, so this means that you can say that you can say what is being read, what a book will be read, you can say. So this means that you can be able to transform one deep structure into surface structures. So that is what is transformational generative grammar. And so as far as the transformations are concerned, movement, you have already you already know, and I have already explained in my previous lecture that movement plays a pivotal role. It plays an important role in the transformation. And movement, you see that movement plays an important role in the transformation. There are different kinds of transformations. आपने जैसे पढ़ी है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन लगना, ट्रांसफॉर्मेशन में लगा दे वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन, and then we have today WH transformation. So I have written in very easy language. One such transformation is called WH transformation. WH transformation can be defined as a syntactic phenomenon in linguistics that involves the displacement of a WH phrase from its canonical position in a sentence to a different position. Canonical position का मतलब होता है, देखिए कैनन, कैनन असूल को हम कहते हैं ना, आम आपने पढ़ा हो ना कैनन, CANON कैनन. तो कैनन का मतलब है असूल, तो कैनोनियल पोजीशन का मतलब है असूली पोजीशन. कि WH ट्रांसफॉर्मेशन हम ये करते हैं कि हम उसकी जो WH फ्रेज की जो असूली पोजीशन होती है, जो नॉर्मल पोजीशन होती है, उसको हम उठा के हम किसी और जगह ले जाते हैं. ठीक है, इसको हम कहते हैं WH ट्रांसफॉर्मेशन. अब ऐसे इसको देखते हैं कैसे हम लेके जाते हैं. जैसे देखिए हमने एक जुमला लिखा है कि शी बॉट अ बुक. ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है. ज़ाहिर इसके अब असर्टिव सेंटेंस कैसे पता चलेगा, इसमें सब्जेक्ट आ रहा है, वर्ब आ रहा है, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है. अब इसके बाद इसका जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं कि व्हाट डिड शी बाय, हम ऐसे ही करेंगे ना कि यानी व्हाट डिड शी बाय. अब जैसे देखें एक बुक है ना, ये बुक एक नाउन फ्रेज है, NP है, और इसमें देखें एक जुमले को ज़रा सा वजाहत हम करते हैं. ये शी इसमें नाउन फ्रेज है और ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है. इसमें जो बाट अ बुक का एक वर्ब फ्रेज है पूरे का पूरा. ठीक है, अगर आप ट्री डायग्राम इसका बनाए ना, तो शी नाउन फ्रेज है और बाट अ फ्रेज एक वर्ब फ्रेज है. वर्ब फ्रेज के अंदर
बाट वर्ब है और वर्ब के बाद फिर नाउन फ्रेज आ रहा है, यानी ए बुक आ रहा है। ये आपने ऑलरेडी ट्री डायग्राम बनाने सीखे हुए हैं। अब हम जब इसको बनाते हैं ना, हम इसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, हम कहते हैं व्हाट डिड ही बाय। अब जैसे देखिए ये जो बुक है ना, बुक एक नाउन फ्रेज है और नाउन फ्रेज को हम व्हाट से रिप्लेस कर सकते हैं ना, ठीक है। यानी हम अगर इसमें कह सकें कि शी बॉट व्हाट, ठीक है। हम अगर असर्टिव अंदाज में कहें कि उसने खरीदा क्या, ठीक है, तो क्या का जो लफ्ज़ होगा ना, क्या का जो लफ्ज़ या व्हाट का जो लफ्ज़ होगा वो बुक को रेफ़र कर रहा है ना। तो हम असल में इसमें कर ये रहे हैं कि एक बुक जो आप बुक है ना, एक बुक को उठा के हम यहाँ फ़िक्रे के शुरू में ले आए हैं, ठीक है, कि व्हाट डिड शी बाय। अब इसको देखें ज़रा, इसको समझें कि ये बुक को व्हाट जो होता है, व्हाट इज़ इक्वल टू अ बुक, यानी अ बुक जो होता है उसको आप समझे कि व्हाट है, उसको व्हाट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया कि अ बुक को, यानी उसकी जो चेंज फ्रॉम व्हाट है, व्हाट को उठाया फ़िक्रे के शुरू में हम मूव कर दिया। तो ये होती है डब्ल्यू एच ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल सादा अल्फाज में अगर हम इसको कहें। आगे हम इसको एक्सप्लेन भी करने की कोशिश करते हैं। डब्ल्यू एच मूवमेंट के अंदर डब्ल्यू एच वर्ड, डब्ल्यू एच का मतलब क्या होता है? डब्ल्यू एच वर्ड्स होते हैं, आपने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि यानी व्हेन, वाई, हाउ, उर्दू में क्यों, कब, कैसे वगैरह के अल्फाज जो होते हैं ये डब्ल्यू एच वर्ड कहलाते हैं इंग्लिश के अंदर। इनको क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है, ठीक है। अब इसके बाद देखें इनके 3 फीचर्स होते हैं, यानी जब हम एक फिक्रे को डब्ल्यू एच ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ना, डब्ल्यू एच में मुंतकिली करते हैं इसकी, तो इसमें 3 फीचर्स होते हैं। 3 फीचर्स को हमने ज़रा देखना है। जैसे देखिए मिसाल के तौर पर पहले मैंने जुमला लिखा है कि व्हाट विल यू बाय, ये एक जुमला है, ठीक है। अब इसको, ये जुमला पहले आपने ये देखना है कि यानी ये जुमला सरफेस स्ट्रक्चर है कि डीप स्ट्रक्चर है। आप डेफिनेटली इस चीज़ को जानते हैं कि यानी एक सरफेस स्ट्रक्चर का जुमला है। ये जो व्हाट विल यू बाय जो होता है ये एक ट्रांसफॉर्म हुआ हुआ सरफेस स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहले हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम उस सरफेस स्ट्रक्चर को ना हम डीप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि फिर हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी करनी। अब जैसे देखिए इसका डीप स्ट्रक्चर क्या होगा कि यू विल बाय व्हाट। अब व्हाट को जो है ना ज़ोर से बोला जाएगा, स्ट्रेस से बोला जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब है जैसे देखें कि यू विल बाय व्हाट, ठीक है। अब व्हाट को हमने क्या किया कि एक जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसको हमने तब्दील कर दिया है असर्टिव सेंटेंस, यानी इस सादा अल्फाज में कहें कि हमने सरफेस स्ट्रक्चर को डीप स्ट्रक्चर में तब्दील कर दिया है, ठीक है। अब हमारे लिए आसान हो जाएगा समझना। अब जैसे देखिए पहली बात इस जुमले की खसूसियत समझें, व्हाट विल यू बाय। इसकी खसूसियत पहली बात यह है कि डब्ल्यू एच एलिमेंट इज़ प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, कि डब्ल्यू एच एलिमेंट को हमने उठाया। जैसे देखिए यू विल बाय व्हाट था ना, तो व्हाट को हमने उठाया और फिक्रे के शुरू में ले गए। इससे देखा आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, जहाँ वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन था ना, टॉपिकलाइजेशन या फ्रंटेशन भी कहते हैं। टॉपिकलाइजेशन का मतलब जब हम एक लफ्ज़ को या फ्रेज़ को उठा के फिक्रे के शुरू में ले आते हैं उसे हम टॉपिकलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ क्या किया कि डब्ल्यू एच एलिमेंट इज़ प्लेस्ड एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी सादा अल्फाज में आप ये कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में कि डब्ल्यू एच एलिमेंट हैज़ बिन टॉपिकलाइज्ड, ठीक है। टॉपिकलाइज कर देगा। जब आप पेपर में टर्मिनोलॉजी लिखे ना लिंग्विस्टिक की जो प्योर टर्मिनोलॉजी जैसे टॉपिकलाइजेशन होती है ये वगैरह वगैरह, फिर आपका इसके ज़्यादा आपका जो आंसर होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। पहला काम ये किया फीचर है। दूसरा है अक्रेंस ऑफ द सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन, ठीक है। अब आपने इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑक्सिलरी इन्वर्जन क्या होती है, ठीक है, कि जब आमतौर पर जो ऑक्सिलरी होता है जैसे विल है, वुड है, शुड है, कैन है, कुड है, इज़ एम आर वगैरह सारे जो जब बतौर ऑक्सिलरी इस्तेमाल होते हैं ये आमतौर पर सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जब हम इनको इन्वर्जन करते हैं, जब हम एक फिक्रे को इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो ये इसके अंदर इन्वर्जन आ जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे देखिए जुमला है कि यू विल बाय, ये जुमला है ना मेन, तो ठीक है डीप स्ट्रक्चर। जब आप इससे इंट्रोगेटिव बनाते हो, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपने विल को फिक्रे के आपने विल को सब्जेक्ट से पहले लिया है, तो ये होता है सब्जेक्ट इन ऑक्सिलरी इन्वर्जन। इसके लिए पिछला लेक्चर है उसको आप सुन सकते हैं, इससे फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। 2 काम होते हैं। पहली बात कहते हैं कि डब्ल्यू एच एलिमेंट को हम शुरू में ले जाते हैं। दूसरी बात हम क्या करते हैं कि हम दूसरी बात ये करते हैं कि सब्जेक्ट और ऑक्सिलरी की इन्वर्जन कर देते हैं, यानी उनके अंदर तब्दीली ले आते हैं। तीसरी बात हम ये करते हैं कि द वर्ब, इसके अंदर जो वर्ब होता है जैसे कि बाय मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, आप कोई भी वर्ब लिख सकते हैं जो अपने मिसाल देनी होगी। apparently appears to be without a direct object, जैसे देखिए ये जुमला है ना what will you buy। अब बाय क्या है? बाय एक ट्रांजिटिव वर्ब्स है और आप तलबा व तलबाती जानते हैं कि जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं अंग्रेज़ी के अंदर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो अजीब बात नज़र आ रही है कि यानी ट्रांजिटिव वर्ब है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये 3 चीज़, लेकिन ये इसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या होता है असल में वो पीछे चला गया, हमने मूव कर दिया ना। अब इसको अगर देखें यू विल बाय व्हाट, ये व्हाट इधर आना था ना, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट आता है लेकिन ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसको डब्ल्यू एच मूवमेंट के जरिए ट्रांसफॉर्म कर देते हैं।
तो ये इस जुमले को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। तो अब इसको आगे हम देखते हैं कि देखें ये बेसिक सेंटेंस है, डीप स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, यानी वही चॉम्स्की वाली ग्रामर आ गई ना, बार बार वही इसका कंसेप्ट आएगा कि डीप स्ट्रक्चर क्या होता है। कहता है यानी यू विल बाय व्हाट, यानी मैंने बताया कि अगर आपको मुश्किल आए ना इस तरह के जुमलों को बनाने में, तो व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट दैट यू कैन टर्न द सरफेस स्ट्रक्चर इनटू द बेसिक स्ट्रक्चर और बेसिक डीप स्ट्रक्चर। जैसे देखिए जुमला था कि व्हाट विल यू बाय, अब इसका आप पहले जो था ना बेसिक सेंटेंस अब बनाएं, आप पहले इसका डीप स्ट्रक्चर बनाएं, तो वो होगा यू विल बाय व्हाट। अब व्हाट को जो है स्ट्रेस से पढ़ा जाएगा यहाँ, यानी व्हाट के ऊपर आपका एम्फेसिस होगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, इसको ऐसे बना लिया। अब इसके बाद सरफेस स्ट्रक्चर क्या होगा, व्हाट विल यू बाय, ये जुमला बन गया। अब आगे चलते हैं, आगे इसको देखने हैं कि असल जो हमारा काम है वो ये कि डब्ल्यू ट्रांसफॉर्मेशन ट्री डायग्राम के जरिए कैसे बयान करते हैं। देखिए अब आपका जो ट्री डायग्राम है वो एक एडवांस लेवल का होगा। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो पहले थे, जो आपने इनिशियल लेवल पे पहले सेमेस्टर में पढ़े थे, वो थोड़ा सा यानी इतना एडवांस नहीं था। ठीक है, तो अब जो ट्री डायग्राम आप पढ़ रहे हो, आप एडवांस पढ़ रहे हो, ये एक अच्छे तरीके से एनालिसिस कर रहा है। यानी पहले सेमेस्टर में आपने ना स्पेसिफायर पढ़े, ना आपने इस तरीके के साथ एग्रीमेंट पढ़ा, ना आपने इस तरीके के साथ इसका टेंस पढ़ा, ना इन्फ्लेक्शन नोट पढ़ी। तो लेकिन अब का जो ट्री डायग्राम वो जो जामिया किस्म का ट्री डायग्राम होगा। अब जैसे देखें इस जुमले को हम कैसे करेंगे, ये देखें कि व्हाट विल यू बाय। ठीक है, अब इस जुमले की थोड़ी सी वजाहत हम करते हैं। देखें जैसे ये सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद हमने क्या लगा लिया, ये इसके बाद व्हाट को हम यहाँ ले गए। ठीक है, फिर इसके बाद सेंटेंस हमने, अब सेंटेंस हम क्यों बनाते जा रहे हैं, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है। असल में बच्चों वजह पता क्या होती है, चूंकि इसमें दो एलिमेंट आ गए ना नए, एक व्हाट फिक्रे के शुरू में आ गया, एक विल फिक्रे के शुरू में आ गया, तो इसका मतलब है कि फिर सेंटेंस जो होता है प्रॉपर सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एन पी और वी पी यहाँ से स्टार्ट होगा। अब हम देखें इसमें आते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हमने एस को हमने लगा दिया, सेंटेंस में व्हाट लगा दिया, व्हाट के बाद फिर सेंटेंस है, फिर विल, हम विल ने यहाँ या ज़ाहिर लगना है। इसके बाद देखें कि सेंटेंस है, सेंटेंस इज लोअर डाउन टू एन पी एंड वी पी, ये पहले वाली बात आ गई कि सेंटेंस। इसके बाद देखें एन पी यहाँ क्या है कि नाउन फ्रेज क्या है, वो यू है, यू लग गया। इसके बाद इन्फ्लेक्शन नोट आपने लाजमी लगानी है, जो मैंने आपको अग्रीमेंट का एक लेक्चर दिया था ना, तो अग्रीमेंट के लेक्चर के हवाले से इन्फ्लेक्शन नोट में क्या लिखना है कि टेंस इसमें है, आपको जुमले की पता चल जाएगा। प्लस टेंस है तो टेंस कौन सा, प्रेजेंट है, तो प्लस प्रेजेंट लगा दे। अग्रीमेंट है तो प्लस अग्रीमेंट लग जाएगा। ठीक है, अब जैसे देखें, अब ये हम देखते हैं कि यानी व्हाट विल यू। ठीक है, अब देखें विल को यहाँ आना चाहिए था ना, ये जो डैश यहाँ डैश या माइनस की इलामत लगी, इसका मतलब है कि इसको यहाँ आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, जैसे देखें असर्टिव सेंटेंस में हम क्या आ गए, यू विल बाय, यानी यू यहाँ आएगा, उसके बाद विल यहाँ ही आएगा ना। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, उसको अग्रीमेंट करने के लिए, हमने उसको इधर से विल को उठाया और हम इसको फिक्रे के इधर ले गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने ये जो एक मूवमेंट कर दिया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखें, वर्ब फ्रेज है, स्पेसिफायर है, वी बार है, वी बार के बाद फिर वर्ब आता है, फिर एन पी आएगा। अब एन पी, अब देखें एन पी इसमें कौन सा है, अब एन पी के बाद फिर हमने क्या लगाया, फिर हमने लगा दिया ये माइनस की इलामत या डैश कह ले, कुछ भी कह ले। इसका मतलब ये होता है कि वो जो लफ्ज़ था एन पी को आना तो यहाँ था, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ से उठाया, ये देखें हमने एरो के जरिए उठाया और हम इसको शुरू में ले गए। ठीक है, इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड डब्ल्यू एच मूवमेंट। ठीक है, अब जैसे दोबारा देखें कि इसको आना चाहिए था, अगर जुमला वैसे होता तो ना यू विल बाय व्हाट, तो व्हाट की ये पोजीशन थी ना, पहले मैंने अभी आपको बताया है, तो हमने व्हाट को उठाया एंड व्हाट वी हैव डन, और हमने इसको व्हाट को यहाँ ले गए। अब इसके बाद दोबारा मैंने ये लिखा है कि व्हाट हैज़ बिन टॉपिकलाइज्ड या फ्रंटेड। तो टॉपिकलाइजेशन फिर मैंने बताया कि आप पिछला लेक्चर लाजमी उसको दोबारा सुने, उसको समझिएगा कि उसमें टॉपिकलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टॉप यानी जब हम किसी फ्रेज़ को, किसी नाउन फ्रेज़ को, किसी लफ्ज़ को, ठीक है, उसको अपनी कैनोनिकल पोजीशन से उठा के जुमले के शुरू में ले आते हैं, तो उसको हम कहते हैं टॉपिकलाइजेशन। जैसे कि मैंने उस लेक्चर के अंदर बड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। यहाँ हम डब्ल्यू एच मूवमेंट के अंदर क्या करते हैं कि व्हाट वी डू इन द डब्ल्यू एच मूवमेंट इज़ दैट कि वी टॉपिकलाइज डब्ल्यू एच फ्रेज़। ठीक है, अब आगे अगला जुमला देखते हैं ज़रा। देखें, अब मैंने इसमें स्टेप बताया है कि लेट्स सपोज कि हम पहले लिखते हैं, असर्टिव बनाते हैं कि यू विल राइट व्हाट, यानी फॉर एग्जांपल जुमला ये था कि व्हाट विल यू राइट, तो हमने इसको क्या बनाया, हमने पहले इसको असर्टिव बना लिया। अब असर्टिव उस तरह ही बनेगा जैसे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। देखें वो तो बिल्कुल आसान है, ठीक है, कि सेंटेंस है, एन पी है, वी पी है। अब जैसे देखिए इसके बाद मैंने पहले और सेंटेंस एस नहीं लिखा, फिर और एस की नोट नहीं बनाई, उसकी वजह क्या है कि ये एक सादा सा जुमला है, एक असर्टिव सेंटेंस है। तो ये देख लें कि यू विल राइट अ बुक। अब इसमें बाकी जो सारी चीज़ें सेम है ना, वो जैसे कि हैं। अब जैसे देखिए अब विल क्यों इधर लगा है, फिर ये मतलब बात है, ठीक है, विल जो होता है ना, विल यहाँ आता है ना विल, लेकिन विल जो होता है ना हम यहाँ इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि ये अग्री कर रहा है इसके साथ, प्लस प्रेजेंट है, प्लस टेंस और प्लस अग्रीमेंट है। ठीक है, ये जुमला आप इसके दे। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ये देखें डब्ल्यू एच ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए। दोबारा आप इसके जरिए देखें
देखिएगा, ये देखें वही हो गया, एस हो गया, फिर एस बार हो गई, एस बार के बाद फिर वो देख लें कि व्हाट विल यू ओके राइट, ठीक है। अब देखें, अब यहाँ के वाट की पोजीशन ये थी, ये वाट की पोजीशन थी ना, फिर हमने यहाँ से जब भी आपने देखना है जो डैश की यहाँ माइनस की लामत होती है, इसका मतलब है कि उसकी कैनोनिकल पोजीशन ये है, लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है। व्हाट वी हैव डन इज दैट कि वी हैव ट्रांसफॉर्म। अब यहाँ हमने क्या किया कि व्हाट हैज़ बिन टॉपिकलाइज, व्हाट को टॉपिकलाइज कर दिया। अब इसके बाद अगला जुमला देखते हैं, ये देखें सी एग्जाम्पल है, ये जुमला है कि विच बुक डिड यू रीड, ठीक है। अब अगर हम इसको, अगर आपको एकदम आप इनिशियली इसको बनाने के काबिल नहीं, तो आप उसको पहले इसके डीप स्ट्रक्चर में तब्दील कर लें, आप इसको कर लें, ठीक है, कि यानी यू रेड करके ना, तो आगे विच बुक को फिक्र के आहर पे ले आए, तो फिर आप उसका पहले ट्री डायग्राम बनाए, फिर उसको आप बनाने के बाद फिर आप इसको शुरू में ले आएँ, ठीक है। इस तरीके से बन सकता है जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। ये देखें अब सेंटेंस है, सेंटेंस के बाद देखें यहाँ जो था ना, क्योंकि एन पी आ रहा है, पूरा नाउन फ्रेज आ रहा है, जैसे विच है, यानी एन पी कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफाइड, स्पेसिफाइड नाउन बार के अंदर क्या होता है कि एन आ रहा है, इसके बाद विच बुक, ये फिक्रे के शुरू में आ गया। इसके बाद देखिए सेंटेंस फिर आ गया, फिर इसके बाद डिड आ गया, फिर इसके बाद सेंटेंस, यानी प्रॉपर से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये जो हम सेंटेंस के बाद जब हम एन पी और वी पी लिखते हैं ना, इसका मतलब है कि प्रॉपर सेंटेंस यहाँ स्टार्ट हो रहा है, पीछे के जो होता है वो हमने मूवमेंट के जरिए इसके अंदर तब्दीलियाँ की हुई हैं। अब जैसे देखिए इसके अंदर फिर वो आ रहा है, तो टेंस क्या इसके अंदर है, इसके अंदर टेंस प्रेजेंट नहीं है। जैसे देखिए मैंने आपको बताया था कि इस सिंटैक्स के अंदर दो टेंसेज होते हैं, एक प्रेजेंट होता है, एक नॉन प्रेजेंट होता है, जिसको हम ग्रामर की ज़बान में प्रेजेंट टेंस कहते हैं या फ्यूचर कहते हैं, वो प्रेजेंट होता है, उसको हमने इसमें प्रेजेंट कहना है। तो जो पास्ट होता है उसको माइनस प्रेजेंट हम कहेंगे, ठीक है। अब जैसे देखें, अब ये देखें डिड की जो जगह थी, यानी देखें डिड की जगह ये थी ना कि यानी यू डिड रीड, ठीक है, व्हाट विच बुक, ये ऐसे होना चाहिए था ना, यानी ठीक है, ऐसे देखें यू इधर होना चाहिए, उधर ही है, ठीक है, डिड यहाँ आना चाहिए था, रीड यहाँ आना चाहिए था, और इसके बाद व्हाट विच बुक वहाँ यहाँ आना, ये विच बुक की ये जगह है ना। लेकिन हमने क्या किया, जैसे देखें इसमें हम डिड को उठाया, डिड को, और हमने मूव कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ठीक है, जिसे हम सब्जेक्ट ऑक्सिलरी हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें हमने यहाँ से विच बुक को उठाया, विच बुक ये जगह थी ना, ठीक है, इसे उठाया तो हमने यहाँ ले गया। अब इसमें देखिए इसका मतलब है कि विच बुक हैज़ बिन टॉपिकलाइज्ड। तो अब अगर सादा सी बात फिर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि मूवमेंट जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर के अंदर मुख्तलिफ किस्में होती हैं। उसकी एक किस्म वर्ड ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है, नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और उसी तरह WH ट्रांसफॉर्मेशन। WH ट्रांसफॉर्मेशन वो होती है जिसके अंदर हम WH फ्रेज को टॉपिकलाइज कर देते हैं। अब फिर टॉपिकलाइजेशन को आपने समझना है कि टॉपिकलाइज करने का मतलब है कि हम उसको उसकी कैनोनिकल पोजीशन, उसकी असूली जगह, उसकी नॉर्मल जगह से उठा के हम उसको उसके शुरू में ले आते हैं, ठीक है। तो इसको आप उसके पिछले लेक्चर के साथ आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। मैंने इसको काफ़ी कोशिश किया कि बिल्कुल आसान सादा ज़बान के अंदर समझाने की। तो अगर मेरे ये लेक्चर्स आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहे हैं तो मैं इसको अपनी बहुत बड़ी अच्छी एक अचीवमेंट समझूंगा। तो मे अल्लाह ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।